मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 प्रयागराज। इंग्लैंड से आए श्रद्धालु भी यहां के इंतजाम देखकर काफी खुश हुए। उन्होंने बेहतर व्यवस्था के लिए योगी सरकार की काफी तारीफ की और कहा कि यहां के नजारे देखकर वो हैरान हैं। इस महाकुंभ के शुभारंभ के बाद से विदेशी श्रद्धालुओं का भी तांता लगा हुआ है। अगर बात की जाए, यहाँ जो श्रद्धालु हैं ये यूके से आए हैं और लंदन से हैं। आप Yeah, thank you. We're really excited to be here. It's really well organised and we're loving our time here. We came all the way from London to be here today and we just want to celebrate Kumbh Mela with everyone. So it's been fantastic for us. have you taken the holy dip? Yesterday we went on a boat and perhaps today we will go in have a holy dip and cleanse ourselves. And what is that you want to share with me or with the media people? What do you find something very special? It's just the people in India. The people in Prayaganj have been wonderful. They're so happy and they made us feel really at home. We have a nice hotel and nice people and food and it's been great. And afterwards we're going to Varanasi and Calcutta to watch some cricket. Ma'am, what's your good name? Anne. And ma'am, where exactly you're from? I'm from London in England. England. Acha, what is that you want to share with the people, or what about this Mahakumbh? It is so amazing to be here. I can't thank you enough for the welcome that we've had. Everyone here has been so friendly and supportive and helpful, helping us get around everywhere. And it's such a great celebration. Just so happy to be here. Thank you. Acha, what is that? What was the first impact in the mind when you just entered in Kumbh? What was something very special you find here? The people, Okay. the atmosphere, the joy. The joy. It was just amazing. Are you happy with the administration, services of administration? Oh, and it's been government very work? good. Absolutely, it's been very, very good. It's been Thanks to very government. easy. Thanks to government. Thank you so much to the government of UP for And Yogi Adityanath. Yogi. Thank you. Yeah, it's been absolutely amazing, and I can't thank you enough. Acha, well, the last. Can you just speak Har Har Gange? Hadagangi. To 7 times only. Hadagangi. 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 And what about you? Haragangi. Om Namah Shivaya is there. Yeah, sorry? Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. तो महाकुंभ में स्नान करने से रूस से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। वो संगम में स्नान करके काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि यहां आकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। You are bathing holy river in Ganga? Yes. What your experience about Kumbh? Oh, so much clouds, so much crowds of people, so much interest for us. Name your country? Russia. Tell me your experience about Kumbh in India. Yeah. Good. Yeah. Yes. Very fine. Very fine. Name please. Yelena. अमेरिका से आई श्रद्धालु महाकुंभ को देखकर काफी भावुक भी हो गई। आइए आपको दिखाते हैं। I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. God's mercy. Why you are crying? This is just such an amazing event to see so many people who are celebrating and wanting purification, wanting moksha, wanting liberty, wanting peace for all humanity. I mean, this is just an amazing thing. Only in India, only in Bards, right? महाकुंभ में छात्राओं का एक ग्रुप भी पहुंचा है। ये छात्राएं दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं और न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो आस्था की डुबकी लगाने खास तौर पर आई हैं। से भक्त पहुंच रहे हैं, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या वृद्ध, क्या बच्चे, और ऐसे में प्रिपरेशन करने वाली आप देख सकते हैं तैयारियां कर रही हैं। अलग अलग सेक्टर्स में बच्चियां आई हुई हैं। मैम, पहली बार आ रहे हैं यहाँ? नहीं, बहुत बार आ चुके हैं। कुंभ में किसी कुंभ? हाँ, पहली बार आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा इंतजाम? बहुत अच्छा लगा देख करके हमको, हम बहुत खुश हुए और बहुत सारी भीड़ है, हमें बहुत सारी परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं यहाँ आकर। कैसा है मैम, क्या कहेंगे? हम यहाँ इसलिए आस्था की एक डुबकी हम भी लगा सके ये पावन अवसर पर। अच्छा, आस्था की डुबकी लगा। देख सकते हैं कि ये वो बच्चियां हैं जो प्रिपरेशन कर रही हैं, कुछ आईएएस की तैयारी कर रही हैं, कुछ पीसीएस की कर रही हैं। उनका कहना है कि वो आस्था की डुबकी लगाने आई, उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी यहाँ डुबकी लगा और महाकुंभ उनके लिए कहीं सपना सा था, और ये जो इंतजाम है इससे ये खुश हैं। जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कुंभ।
और इस बार सिर्फ देश के लोग ही नहीं बल्कि विदेशों से आने वाले लोग भी महाकुंभ को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं। विदेशियों ने महाकुंभ के इंतजाम को लेकर तारीफ की और कहा कि करोड़ों की भीड़ के साथ इतने सही ढंग से इंतजाम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसे यहाँ की सरकार ने पूरा किया है। Yeah, exciting. Excited. Yeah, for people to give them blessing. Your name. Yogamata, okay? It's, you can't even explain it. I've been now, this is my third one. I went in 2010 to Hardwar, 2013 here, and now again, and all of the craziness and things are changing, but beneath all of that is just something that doesn't change. Very impressed. It's very well organized. We're staying in a very nice tent colony, and yeah, it's very pleasant. Oh, this is just the most amazing experience. It's fantastic. We're loving every minute of it. It's our first time in India. I'm here with my daughter, and it's very emotional. I'm loving it. Thank you. I think it is very well organized, and it is very, very big, and it is so many friendly people. I really like it. I enjoy it. I wanted to feel the spiritual energy and to meet Indian people, and they are so friendly. It's amazing. I feel that it's very peaceful. I feel even with a lot of people, every people is pulsing, the Kumbh Mela. We can really feel the Kumbh Mela inside the bodies, I just arrived yesterday, so I cannot say so much because still I didn't went for bathing. But for the moment, I'm really happy to be there, and I feel really good energy here. Yeah. महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान चल रहा है। हर हर महादेव का उद्घोष करते साधु संत और श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने सबसे पहले अमृत स्नान किया और उसके साथ श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने अमृत स्नान किया। दूसरे स्थान पर श्री पोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा एवं श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत ने स्नान किया। संगम तट पर अमृत स्नान का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। अखाड़ों के निकलने वाले रास्ते के दोनों तरफ भारी पुलिस बल भी तैनात है। महाकुंभ मेले में आए विदेशी श्रद्धालुओं की भागीदारी काफी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। महाकुंभ को देखते तो वैसे बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। हम अभी सब संत महात्मा आए, उनके दर्शन मेले हो रहे, सब गंगा जी में स्नान करने आए हैं। अभी कुंभ मेला चल रहा है तो सभी भक्तजनों, सभी महाजनों, सभी संतों महंतों सब पधारे, उनका दर्शन मेला करके बहुत आनंद आ रहा है। ओम नमो नारायण। और यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है। ब्रह्म मुहूर्त से ही अखाड़ों का आना शुरू हो गया है। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा, अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट समेत तमाम धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 12 बजे तक लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोगों के द्वारा स्नान किया जाना संभावित है। बीती रात लगभग 12 बजे से ही सभी जो प्रयागराज की तरफ आने वाले सभी सड़कें थीं उस पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी। सभी संबंधित एसपीज के द्वारा वहां खुद इन चीज़ों को मॉनिटर किया गया था। ये इंश्योर किया गया था, सुनिश्चित कराया गया था कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह का कोई कष्ट न हो। महाकुंभ को लेकर मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में योगी सरकार ने बेहतर इंतजाम किया। हमारी सरकार सकारात्मक दिशा में काम कर रही है। हमारे साथ हैं यूपी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी साहब। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे। अखिलेश यादव लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट कर रहे थे, वहां की अव्यवस्थाएं दिखा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है और शांतिपूर्वक महापर्व की स्नान भी संपन्न हो रही, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, ये निश्चित तौर पर देश के सांस्कृतिक विरासत को और मजबूत करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी वहाँ हमारे सम्मानित श्रद्धालु आ रहे हैं महाकुंभ में, जो भी दर्शन करने आ रहे हैं, स्नान करने आ रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं को बढ़िया बेहतर बनाने की दिशा में हमने बड़ी ईमानदारी से हमारी उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमेशा समाज को सकारात्मक भाव से आगे ले जाना,
ये हमारी सरकार की सोच रही है और हम उसी दिशा में पूरे ईमानदारी से और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। महाकुंभ में साधु संत लगातार अमृत स्नान कर रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी अमृत स्नान किया और इस दौरान लाखों की संख्या में लोग भी मौजूद रहे। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहला अमृत स्नान और किस तरीके से श्रद्धालुओं का जन सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा है और संगम पर पुष्प वर्षा की जा रही है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की जा रही है श्रद्धालुओं पर। सनातन संस्कृति का संगम है महाकुंभ। देश से लेकर विदेशों तक से जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ में आए हैं। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पहला अमृत स्नान है और संगम तट पर किस तरह हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये ड्रोन से एरियल शॉट हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां उपस्थित हैं। आज फुटफॉल बहुत ज्यादा है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश बताइए, सुबह तक का आंकड़ा ही कह रहा है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। तौर पर आज मकर संक्रांति का स्नान पर्व है जो कि महाकुंभ का दूसरा स्नान पर्व है, लेकिन ये पहला अमृत स्नान है अखाड़ों के लिए, क्योंकि अमृत स्नान यानी कि शाही स्नान जिसे पहले कहा जाता था, उस शाही स्नान में अमृत स्नान में आज देख सकते हैं कि न केवल अखाड़े डुबकी लगा रहे हैं माँ त्रिवेणी में, लेकिन जबकि देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। लगभग हर राज्यों से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ हनुमान मंदिर के नजदीक, क्योंकि ये लौटने का मार्ग है। वापसी मार्ग पे तमाम श्रद्धालु दिख रहे हैं जिन्होंने जो है गंगा जल अपने हाथ में लिया हुआ, स्नान किया हुआ है, माथे पर इनके तिलक है और ये पूरे वेग के साथ यहाँ पर चले आ रहे। कुछ लोगों को रोककर बातचीत भी करना चाहेंगे। ये बताइए कि आपने स्नान कर लिया है, आपके हाथ में गंगा जल है, किस तरह से यहाँ पर सुविधाएं व्यवस्थाएं आपने देखी, कहाँ से आए? जी हम बनारस से आए हुए हैं और सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, काफी अच्छा प्रबंध किया गया है हमारी सरकार द्वारा। काशी में आप स्नान करते हैं लेकिन आप यहाँ से गंगा जल ले जा रहे हैं, गंगा वहाँ भी है, क्या अंतर है? यहाँ पे संगम नहीं, वहाँ यहाँ हम संगम का जल लेके जा रहे हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? काफी अच्छी व्यवस्था है, काफी व्यवस्थित सारी चीजें हैं। आप बताइए, टीका आपने लगा लिया, चंदन लगा लिया, कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? व्यवस्था तो बहुत अच्छी लगी, आते हैं इतना सरकार ने पैसा खर्च किया है तो व्यवस्था तो अच्छी रहेगी और काफी अच्छा लगा नहा के। इंतजामों क्या कहेंगे? सरकार इंतजाम ने काफी सुंदर किया है और लोगों के आने जाने की व्यवस्था भी ठीक किया है, आते हैं और बैरिकेडिंग भी अच्छी है, पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छी है। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छी व्यवस्था है बीजेपी सरकार की, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया गया, सब तरह की सुविधाओं का इंतजाम है, कोई किसी प्रकार की किसी श्रद्धालु को दिक्कत नहीं हो रही और बहुत अच्छी सुविधा व्यवस्था की गई है, इसके लिए धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको यहाँ का? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था किया है सरकार ने और काफी अधिक भीड़ भी आई है इस बार और बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। सरकार के इंतजामों को लेकर क्या कहेंगे? काफी भीड़ के बावजूद सब लोग आराम से बहुत अच्छा प्रबंधन किया है सरकार ने, इतनी जनता के होने के बावजूद भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी को, सब आराम से स्नान कर पा रहे हैं। हमारे साथ देखिए आलोक शुक्ला जी है जो कि लगातार एक महीने से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। आलोक जी, आप बताइए कि आज आपने जिस तरह का जन सैलाब देखा, ऐसी उम्मीद थी? देखिए, जिस तरह का जन सैलाब मैंने आज देखा है, 1 महीना हो गया मुझे, मैं ठीक 14 दिसंबर को आया था और आज 14 जनवरी है और इस दौरान जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो जनता है, मतलब एक तो इतनी जनता आ रही है, इसके बाद भी सुविधाओं की कोई कमी नहीं दिखी मुझे। जब आप पूछते हैं लोगों से कैसा रिएक्शन होता है सुविधाओं को लेकर, जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की ओर से? मुझे कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने सरकार की बुराई की हो, सभी ने एक स्वर में सरकार की तारीफ की। और सर्वेश जी, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जो प्रशासनिक व्यवस्था है और जो पुलिस है, इतना पोलाइट बिहेवियर है पुलिस का जनता के साथ, इतना प्रेम से बात कर रहे हैं। मैं खुद 1 महीने से हूं, मुझे किसी एक भी पुलिसकर्मी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे गाड़ी को, चाहे मेरे पास ये कार्ड हो न हो, जरा सी भी बदतमीजी से बात नहीं की है। मतलब उनको सॉफ्ट स्किल की जो ट्रेनिंग दी गई है पुलिस कर्मियों को, उसका असर दिख रहा है। बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रशासन में जो कांस्टेबल स्तर के जो लोग हैं, उन तक को इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी गई है कि वो किसी से भी मिसबिहेव नहीं कर रहे हैं, बहुत मना भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और उस ट्रेनिंग का, उस ग्रूमिंग का असर नजर आ रहा है। वहां पर क्राउड मैनेजमेंट, उनसे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, बहुत बार आग्रह करना पड़ता है, बहुत बार स्थितियों को संभालना पड़ता है। तो ऐसे में क्या वो सलीका होना चाहिए, उस सब की ट्रेनिंग यहाँ पर पुलिस कर्मियों को दी गई थी, कांस्टेबल स्तर से लेकर ऊपर तक। हमारे सहयोगी अमित गंजू भी हमारे साथ हैं। और अमित गंजू, आपका इंटरेक्शन तो विदेशी सैलानियों से बहुत ज्यादा हुआ है, हम देख रहे हैं लगातार आपकी बातचीत जो है विदेशी श्रद्धालुओं से काफी हुई है जो यहाँ के इंतजामों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो क्या चीज है जो उन्हें खास तौर पर गंगा के करीब खींच लाती है, या हिंदुइज्म में उनके इंटरेस्ट की वो वजह है कि इतनी दूर से आकर ये लोग त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए खुद को रोक नहीं पा रहे?
देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जन सैलाब है, आस्था का जन सैलाब है, क्योंकि ये संगम है, ये प्रेम की धरती है क्योंकि ये संगम है, ये तीर्थ स्थली है क्योंकि ये संगम है। और इसी संगम के इस महाकुंभ जिसका योग 144 वर्ष बाद बना है, इसको देखने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग खासकर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और बात की जाए विदेश की तो 27 ऐसी कंट्रीज के लोग अभी तक यहां पहुंच चुके हैं। अगर हम बात करें यूएई, यूके, यूएसए, यहाँ तक कि जो मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज हैं उसके लोग आए। यहाँ के सिंगापुर की बात करें, अगर यूके की बात करें तो मैनचेस्टर, नॉटफोर्ट, सेंट्रल लंदन और यहाँ तक कैंट तक के लोग यहाँ आए। और इनके अलावा की अगर बात की जाए लॉस एंजलिस और न्यू जर्सी से भी लोग आए हैं, टोरंटो से आए हैं, कनाडा, मतलब कहीं कोई ऐसी जगह नहीं छूट रही। और जिससे भी बात कर रहे हैं वो बात करते करते मतलब उसके अंदर एक अतोत्साहित हो रहा है यहाँ देख के, करा यहाँ के लोग, यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ का ऐसा स्वरूप, ऐसा भव्य स्वरूप। और इसके बाद गंगा होली में डिप लगाना, यानी कई लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, कुछ फ्रांस के लोग हैं, कुछ जर्मनी के लोग हैं, नहीं इंग्लिश भी समझ पाते अपनी भाषा, लेकिन उनके एक्सप्रेशन या उनके साथ जो इंटरप्रेटर चल रहे हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा न जनसैलाब देखा, ना ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन देखी, और ऐसा रूप, जैसा रूप दिन में उससे कई मल्टीपल टाइम रात में दूध की रोशनी में टेंट सिटी चमक रहा है, जो उनको यहाँ आकर्षित। उनका प्लान ऑफ एक्शन सिर्फ एक दिन का था, यानी कुछ एक जर्मनी के लोगों से हमारी बात हुई, जो लुई फिलिप्स से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि हमने सिर्फ एक दिन का प्लान किया था, उसके हमें आगे काशी जाना था, लेकिन उन्होंने आज होटल में एक्सटेंशन किया, हालांकि उनको और मल्टीपल पैसा भी देना पड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। और उनके लिए तो निश्चित रूप से ये जिज्ञासा इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि भारत को छोड़ के शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां पर इतने व्यापक पैमाने पर इतना बड़ा जो महाकुंभ या महासंगम या महासमागम ऑर्गेनाइज किया जाता हो, और वो भी बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी बदइंतजामी के। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। कई बार महाकुंभ में कवरेज कर चुके विदेशी पत्रकार भी इस बार की व्यवस्थाओं से काफी प्रभावित दिखे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पत्रकारों ने व्यवस्थाओं के लिए सराहना की है। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर विदेशी फोटो जर्नलिस्ट डैनियल और रूडी ने योगी सरकार का धन्यवाद किया है। कवरेज के लिए यहाँ आए हुए हैं, मीडिया कवरेज बहुत शानदार है, और यहाँ जर्मनी के और ऑस्ट्रिया के फोटोग्राफर्स और जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद हैं। सर, व्हाट्स योर नेम? Rudy. What do you think about this, all these things? We like it very much. We was 12 years ago also here. You came here 12 years ago also? This is my fifth Kumbh Mela. Your fifth Kumbh Mela? Yeah. One Allahabad and one. What things changed? What things changed from that date till now? Yeah. The lights changed, so it's much brighter light, not the yellowish light, which is a little bit sad for photography. But also, it is much more organized. I recognize it. It is much stronger in the organization. What do you think about our Chief Minister, Mr. Yogi Adityanath ji? The guy is responsible for organizing also the festival and make it happen. So we are thankful for that. Do you think that this Kumbh is more comfortable than other Kumbhs? Compared to the last Kumbh Melas I've visited, it is much bigger, so much harder to organize, I guess. I don't know, but I guess. So the organization is quite good. I can't complain. Get everything what I need. Informations are there. What do you think about media center? Because International Media Center is, I think, quite good. Very well organized. Very well organized. We've been welcomed, and they cared about every need we had. Gave us opportunity to talk with other representatives, and yeah, it was quite a good experience. और महाकुंभ में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। अमृत स्नान में साधु संतों और श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं की श्रद्धा का आसमान से अभिनंदन किया गया और घाट से लेकर अखाड़ा मार्ग पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इससे महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद श्रद्धालु उत्साहित नजर आए। महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का सिलसिला जारी है। कुंभ में युवा डेलीगेशन देखने को मिला जो कि इटली के छात्र छात्राएं हैं। इटली के युवा डेलीगेशन से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित गंजू ने।
मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या कहीं से कम होती नहीं दिख रही और ऐसे में जो विदेशी श्रद्धालु हैं वो भी एक एक करके बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर बात की जाए इस महाकुंभ में तो ऐसे 3 स्टूडेंट्स आए हैं जो इटली से स्पेशली इसको अटेंड करने के लिए आए हैं और इनसे हम बात करते हैं। सर, वेयर एग्जैक्टली यू फ्रॉम? We're from Italy. What have you find something very special in this महाकुंभ? Well, of course, culturally speaking, it's really different from what we are used to experience in Europe in general, I would say. But it's nice because you can see like a different way of considering life and living. You know, it's about the cultural appealing of something really different from what we're used to. Acha, what is your first impression when you entered this holy place? What was your first one? The crowd. The crowd, yeah. Acha, what do you say about the? Are you happy to see the entire thing? Yeah, actually, yes. I'm just joking. The crowd, of course, is something we're not used to. But like I would say that something that is really impacting is like, you know, seeing how people care about this kind of event. It's really something more than like a regular event. You can feel it. Acha, what do you say about the arrangements of the government? Are you happy with the arrangement of state and central government? The government, the Indian government. You mean? I don't know it very well. I mean, the administration. Are you happy with the administration? The Indian administration. With respect to tourism, yeah, I would say I can't complain. And what do you say about yourself, ma'am? Where is it you're from? Sorry? Where from you are, ma'am? Italy. What have you find something very special in this? Something very special what you are observing. Qualcosa di speciale. Have you taken a holy dip or not? Have you taken a holy dip in this? No. Okay. देखिए, आप देख सकते हैं कि ये सब छात्र छात्राएं हैं क्योंकि ये इटली से, इनको इंग्लिश की भाषा नहीं आता। इनके साथ जो एक सहयोगी उन्होंने बताया कि इंतजामों से खुश हैं, ये खुद बहुत खुश हैं क्योंकि इन्होंने ये देखा नहीं था कि इतना क्राउड एक साथ, आस्था इतनी बड़ी चीज है कि एक साथ इतने लोग आस्था की डुबकी लगाने, इसको देखने के लिए, और ये खुद आस्था की डुबकी लगाने के लिए अतोत्साहित दिख रहे हैं। जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। जिनको आयुर्वेद प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आज दूसरा दिन। मकर संक्रांति के मौके पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान जारी। संगम तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं स्नान। कड़ाके की ठंड के बीच लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। महाकुंभ में स्नान के लिए उमड़ा जनसैलाब। अमृत स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 6:15 से शुरू। 13 अखाड़ों के साधु संत लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। सबसे पहले मानेरवाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों ने किया स्नान। संगम तट पर जूना अखाड़े के संगम स्नान के दौरान दिखा भव्य नजारा। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी के साथ और साधु संतों का हुजूम दिखा। अवधेशानंद गिरी की तस्वीर के साथ जूना अखाड़े के संत नजर आए। संत और भगवा में हुआ महाकुंभ क्षेत्र। निरंजनी अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने भी लगाई डुबकी। दिखी भारी भीड़। अमृत स्नान के लिए रथ पर सवार होकर निकला संतों का काफिला। दिखा विहंगम दृश्य। दर्शन कर रहे लोगों को साधु संतों ने किया अभिवादन। विदेशी महिला संतों ने संगम में लगाई डुबकी। विदेशी महिला सन्यासियों में दिखा जोश आई। प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में पहला अमृत स्नान में संतों की लंबी लाइन। क्रमबद्ध होकर अपनी बारी में आगे बढ़ते नजर आया संत समाज। कड़ाके की ठंड में भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने उमड़े लोग। हर हर महादेव के लगा रहे जयकारे।
महाकुंभ में स्नान के लिए कई किलोमीटर लंबी श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। अमृत स्नान पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे लाखों श्रद्धालु। महाकुंभ में 144 साल बाद बन रहा है दुर्लभ शुभ संयोग, उमड़ रही आस्था की भीड़। मकर संक्रांति के मौके पर पहला अमृत स्नान, कुल 6 अमृत स्नान होंगे। महाकुंभ के अमृत स्नान को लेकर सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ मेले में सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक देहरादून की कैंट विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। नैनीताल के पिरुमदारा में अवैध बाजार पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने 2 हफ्ते पहले अवैध बाजार हटाने का दिया था नोटिस। इलाके में बड़ी संख्या में तैनात रही पुलिस फोर्स। अल्मोड़ा के धौलछीना में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, गंभीर रूप से घायल एक शख्स अस्पताल में भर्ती। चमोली में मकर संक्रांति पर खोले गए आदि बद्री मंदिर के कपाट, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुले कपाट। 7 दिन का सांस्कृतिक विकास मेला भी शुरू। मकर संक्रांति पर गंगा में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। हरिद्वार से उत्तरकाशी तक स्नान के लिए उमड़े लोग, देवडोलियों को भी कराया गया स्नान। नमस्कार, उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी का संकल्प पत्र प्रदेश स्तर पर होगा और हर नगर निगम के लिए बीजेपी अलग अलग संकल्प पत्र जारी करेगी। सीएम धामी बुधवार को बीजेपी ऑफिस में संकल्प पत्र जारी करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र जारी करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी डटे हुए हैं। देहरादून कैंट विधानसभा में सीएम धामी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और चुनाव में जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को सीएम धामी ने दिया है। तो निकाय का ये रण है कैंट विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। हमारी दीदी जिनको मैंने 2 दिन पहले अचानक मुझे ध्यान आया कि इतना बड़ा महानगर के अंदर चुनाव हो रहा है और हम नगर निगम बनाने जा रहे हैं, नया बोर्ड बनाने जा रहे हैं और हमारी दीदी कहीं दिख ही नहीं रही है, रजनी दीदी। तो मैंने इनको कहा फोन पर ही कि जो है आपके पास आना पड़ेगा क्या, किसी को भेजना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई तेरा फोन आ गया, अब मैं पूरे जब तक चुनाव समाप्त नहीं होगा मैं पूरे एक एक बस्ती बस्ती में जाऊंगी, घर घर तक जाऊंगी लोगों के बीच में। आदरणीय दीदी रजनी रावत जी, संचालन करने वाले हरीश कोहली जी, बबलू बंसल जी एवं बड़ी संख्या में यहां आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में एकत्र हुए। हमारी हनी पाठक जी भी दिख रही है मुझे और भी तमाम लोग मंच पर आसीन सभी हमारे नेतागण और सामने बैठे हुए हमारे सभी सभासद के प्रत्याशी, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज भगवान सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश कर गए हैं। आज पूरे देश के अंदर अनेक अनेक स्थानों पर भगवान सूर्यदेव के उत्तरायण में प्रवेश होने पर एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
कहीं मकर संक्रांति के रूप में, कहीं लोहड़ी के रूप में, कहीं उत्तरायणी के रूप में, कहीं बिहू के रूप में, कहीं पोंगल के रूप में, कहीं माघी के रूप में। मैं इस भगवान सूर्य नारायण के उत्तरायण में प्रवेश होने पर आप सबको अपनी ओर से कैंट विधानसभा के सभी भाई बहनों को मैं बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान सूर्यदेव आपके जीवन में हर प्रकार से मंगल करें। और यहां आप सबके उपस्थित होने पर मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सबके बीच में आकर मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है। और जब भी मैं कैंट विधानसभा में आता हूं तो सच में मुझे एक अत्यंत ऐसा लगता है अपने परिवार के बीच में आ गया हूं, क्योंकि आप सब लोगों को, आप में से कम लोगों को पता होगा कि लगभग 22 साल मैं भी इसी विधानसभा में रहा हूं, इसी विधानसभा में। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब से मैं पैदा हुआ, अगर मैं सबसे ज्यादा समय कहीं रहा होऊंगा तो कैंट विधानसभा में रहा हूं। आज के इस अवसर पर हमारे आदर्श एवं प्रणव स्रोत रहे स्वर्गीय हरबंस कपूर जी को भी मैं आज श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे राज्य में और जब उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में और देहरादून की सेवा के लिए, इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनके सेवा भाव और समर्पण के कारण ही ये क्षेत्र आज भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा दुर्ग बन गया है, एक ऐसा किला बन गया जो बीते कई दशकों से हमें अपना आशीर्वाद भी दे रहा है, अपना स्नेह भी दे रहा है। साथ ही कैंट विधानसभा क्षेत्र के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं का भी मैं विशेष रूप से आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हर चुनाव में कैंट विधानसभा हमारा सर्वोत्तम, सबसे अच्छा देने का काम करती है। हमेशा उनका रिजल्ट हमें कहीं न कहीं प्रोत्साहित करता है। आप सभी के अथक प्रयासों और समर्पण ने न केवल इस क्षेत्र में बल्कि पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। कोटद्वार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता बीजेपी के साथ है और निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत होगी और राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। देख, कोटद्वार के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत कर बढ़ रही है और जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं, हर बूथ के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा काम किया जा रहा है, जो जीत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। और मैं कह सकता हूँ कोटद्वार भारतीय जनता पार्टी का खासतौर में कहता पहले से ही हमारा प्रभावी गढ़ रहा है और यहाँ पर हमारे प्रत्याशी शैलेंद्र जी अच्छे मतों से इस बार जीतने वाले हैं। शहर के सटीक समीकरण में आज बात होने जा रही है उत्तरकाशी की नगरपालिका बाड़ाहाट की। यहां पर बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। यहां पर जनता की जरूरतें क्या हैं और शहर के समीकरण क्या हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। उत्तरकाशी की सबसे बड़ी पालिका बाड़ाहाट नगर पालिका में निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है। प्रचार प्रसार का दौर जारी है। नगर पालिका बाड़ाहाट की स्थापना साल 1918 में सैनिटेशन कमेटी बाड़ाहाट के रूप में हुई। 1958 में नगर पालिका बाड़ाहाट में पहली बार चुनाव हुए। इस बाड़ाहाट पालिका में 22,738 मतदाता हैं, जिनमें 10,714 महिलाएं और 12,024 पुरुष मतदाता हैं, जो नगर के विकास के लिए नया प्रतिनिधि चुनेंगे।
106 साल पुरानी नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने किशोर भट्ट को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने दिनेश गौड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज पूर्व पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नालियों की समस्याएं हैं, उससे ऊपर मैं अगर बात करूं तो जल भराव की जुशाड़ा से लेकर गंगोरी, ज्ञानसू, तिलोत में सब जगह जल भराव की समस्या है। सीवर लाइन की अगर हम लोग उसको जो है बड़ा बजट का पैकेज एक देकर उसको सीवर लाइन से कनेक्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है। झूलती तार, मैं जुशाड़ा में कई परिवारों में ऐसे गया जहाँ झूलती तारों की वजह से हमारे जो है छोटे छोटे बच्चे या वृद्ध जो है हताहत हुए हैं या कोई आज भी गंभीर रूप से उसकी वजह से बीमार है। समस्याएं क्या हैं उत्तरकाशी की? जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, सबसे बड़ा एक प्रेशर पब्लिक का शहर में पड़ता जा रहा है, क्योंकि लोग आएंगे, हमने पिछले 25 सालों से न तो अच्छे स्कूल दिए, न अच्छा स्वास्थ्य दिए, वो स्वास्थ्य सुविधाएं दी लोगों को, तो निश्चित तौर पे लोग शहर की तरफ दौड़ेंगे। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पार्किंग की बड़ी समस्या यहाँ पे आ रही है। नाली की है, सड़क की है, ये समस्याएं हैं, और सीवर लाइन की समस्या है, हमारी तामाकड़ी सुरंग की जो दुर्दशा है उसकी समस्या है, और हमारे कालेश्वर मार्ग में जो जल भराव का जो मामला है उसको हम लोग बैठ के हम लोग अपने हिसाब से जनता के बीच में उनके जो राय लेके और उनको ही कहेंगे कि आप बताइए इसका रास्ता क्या है, और क्योंकि बजट कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। चुनाव प्रचार के बीच स्थानीय जनता सुविधाएं बढ़ाने के साथ स्थानीय समस्याओं को हल करने की मांग कर रही है, जिसमें स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पानी और ठोस विकास की मांग है। कूड़ा निस्तारण, पार्किंग, जलभराव, सीवरेज सिस्टम, बिजली की झूलती तार, बदहाल सड़क, खेल का मैदान, बढ़ते नशे को रोकना शहर के मुख्य मुद्दे हैं, और जो इनको हल करने की बात करेगा जनता उसे चुनेगी। कूड़े की समस्या हो गई, सीवर लाइन हो गए, रास्ते हो गए और नालियाँ हो गए, कई सारी समस्याएं जनपद उत्तरकाशी में है। और मतलब जो ये समस्याओं को दूर करेगा, लोगों की मतलब देखेंगे, रास्ते अच्छे होंगे, मतलब नालियाँ अच्छी होगी, मतलब इसीलिए मतलब जो अच्छा काम करेगा उसी के लिए वोट करेंगे हम। उत्तरकाशी जो है सीवर से नहीं जुड़ पाया है और बहुत दयनीय स्थिति है। हम कहना चाहते हैं कि भाई सच्चे मन से, काशी विश्वनाथ की भूमि है और सच्चे मन से काम करना है तो आगे आएं, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए जनता को मतदान करना चाहिए। ये चुनाव सिर्फ नगर पालिका का नहीं है, बल्कि ये तय करेगा जिला मुख्यालय में विकास की दिशा क्या होगी। मुद्दे बड़े हैं और चुनौतियां भी। अब देखना होगा जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। शहर के सटीक समीकरण में बात होगी विकासनगर की सेलाकुई नगर पंचायत सीट की, तो यहां बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। क्या है शहर का समीकरण, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। गांव के दायरे से बाहर निकलकर नगर निकाय चुनाव में पहली बार हिस्सा ले रही सेलाकुई नगर पंचायत इस चुनाव में बेहद अहम सीट मानी जा रही है। पहली बार नगर निकाय में हिस्सा ले रही, लेकिन नगर पंचायत में कुल 9 वार्ड हैं। सेलाकुई नगर पंचायत में इस बार 16,277 मतदाता हैं, जिसमें 8,159 महिला वोटर और 8,112 पुरुष मतदाता हैं, जो 9 मतदान केंद्रों पर 23 जनवरी को अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। नगर पंचायत सेलाकुई में बीजेपी ने भगत सिंह राठौर को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। लेकिन फिर भी निर्दलीय प्रत्याशी सुमित चौधरी पूरे दमखम के साथ मैदान में, और दोनों उम्मीदवारों के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला है। और मेरा सर्वप्रथम यह प्रयास रहेगा कि मैं 6 माह के अंदर इस नगर पंचायत का उच्चीकरण कराऊंगा और इसको नगर पालिका का दर्जा दिलाना मेरा काम रहेगा, ताकि बजट का जो आवंटन है वो जनसंख्या के अनुरूप हमको प्राप्त हो सके। 2011 की जो जनसंख्या वो मात्र 16,880 है और वर्तमान में हमारे जो वोटर लिस्ट है उसमें 16,000 वोट है, तो निश्चित बात है जनसंख्या बहुत बड़ी होगी। और फिर ये फ्लोटिंग जनसंख्या होती है, जो निरंतर सुबह शाम लोग आते हैं। 1 लाख की आबादी वर्तमान में यहाँ की है। क्षेत्रों में जल भराव होता है,
और एक कोई बाजार में जिस टाइम शाम को इंडस्ट्री की छुट्टी होती है हमारे यहाँ, उस टाइम जाम की स्थिति बहुत ऊपर हो जाती है। एक वो मेन मुद्दा रहेगा। एक महिलाओं के लिए हमारे यहाँ जब शाम के टाइम लेडीज आती हैं, कंपनी की छुट्टी होती है, तो अंधेरा रहता है, उनके लिए स्ट्रीट लाइटों का प्रबंध कराना। हमारे बुजुर्गों ने एक चीज सिखाई है कि इधर उधर देखोगे तो ठोकर लगेगी, हमें सीधा ही देखना है। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जनता से विकास के वादे कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय जनता भी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से लेकर सड़क, पानी, पार्क, पार्किंग, साफ सफाई जैसे मुद्दों पर मुखर है। और उनका कहना है कि जो प्रत्याशी जन समस्याओं को निपटाने का दम रखता होगा, उसके ही हक में यहाँ की जनता अपना फैसला करेगी। ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो दरअसल पे काम कराए और सरकारों की तरफ वादे करके बाद में आए ना। अब यहाँ पे हमारे वो वादे करके चले जाते हैं वोट लेके, पर काम कुछ नहीं कराते। हमें जो इनके ऊपर पूरा विश्वास है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और निर्दलीय के आमने सामने की इस टक्कर में कौन बाजी मारता है, और देखना यह भी होगा कि सेलाकुई की जनता किसके सिर ताज बांधती है। न्यूज़ 18 के लिए सेलाकुई विकासनगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हुआ। आचार संहिता हटते ही लागू हो सकता है यूसीसी। 26 जनवरी को सीएम कर सकते हैं घोषणा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की घोषणा। यूसीसी को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। और बातचीत करने के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए अंतम, लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि जनवरी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। तो कमोवेश इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जो ट्रेनिंग का एक पक्ष था वो ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। हर डिस्ट्रिक्ट में ये युद्ध स्तर पर ट्रेनिंग चल रही है। और जो हमारी जानकारी में आया है कि चूंकि उत्तराखंड में 23 जनवरी को यहाँ पर निकाय चुनाव का मतदान होना है, 25 जनवरी को काउंटिंग होगी, तो उसके बाद 26 जनवरी को जो हमारे सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। यानी कि 26 जनवरी का दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक बार फिर से ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि इसके लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड की लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अब माना जा रहा है कि करीब 26 जनवरी को इसकी घोषणा की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। नैनीताल के पिरुमदारा इलाके में काशीपुर रामनगर हाईवे पर बनी एक अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। यह अवैध मजार हाईवे के चौड़ीकरण में बाधक बन रही थी। 2 हफ्ते पहले इसे हटाने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी किया था। इसकी अवधि पूरी होने पर आज डीएम नैनीताल के निर्देश पर इसे बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। अल्मोड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नौगांव पिपली रोड पर दौलछीना के पास देर रात एक कार 500 मीटर खाई में गिर गई और हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर तौर पर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल का रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। पौड़ी में रविवार को सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं मिलने पर शिकायत पर सीएम धामी ने एक्शन लिया। सीएम धामी ने पौड़ी के डीएम से रिपोर्ट तलब की है। मंगलवार को कैंप कार्यालय में अफसरों के साथ बैठक में सीएम ने लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अस्पताल में इमरजेंसी के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बस हादसे के कारणों की जांच करके परिवहन विभाग के अफसरों की लापरवाही पर कार्रवाई करने के लिए कहा था। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एसिडिटी, प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आज दूसरा दिन। मकर संक्रांति के मौके पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान जारी। संगम तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं स्नान।
कड़ाके की ठंड के बीच लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। महाकुंभ में स्नान के लिए उमड़ा जनसैलाब। अमृत स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 6:15 से शुरू। 13 अखाड़ों के साधु संत लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। सबसे पहले मां निर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों ने किया स्नान। संगम तट पर जूना अखाड़े के संगम स्नान के दौरान दिखा भव्य नजारा। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी के साथ और साधु संतों का हुजूम दिखा। अवधेशानंद गिरी की तस्वीर के साथ जूना अखाड़े के संत नजर आए। संत और भगवा में हुआ महाकुंभ क्षेत्र। निरंजनी अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने भी लगाई डुबकी। दिखी भारी भीड़। अमृत स्नान के लिए रथ पर सवार होकर निकला संतों का काफिला। दिखा विहंगम दृश्य। दर्शन कर रहे लोगों को साधु संतों ने किया अभिवादन। विदेशी महिला संतों ने संगम में लगाई डुबकी। विदेशी महिला सन्यासियों में दिखा जोश हाई। प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में पहला अमृत स्नान में संतों की लंबी लाइन क्रमबद्ध होकर अपनी बारी में आगे बढ़ते नजर आया संत समाज। कड़ाके की ठंड में भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने उमड़े लोग। हर हर महादेव के लगा रहे जयकारे। महाकुंभ में स्नान के लिए कई किलोमीटर लंबी श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। अमृत स्नान पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे लाखों श्रद्धालु। महाकुंभ में 144 साल बाद बन रहा है दुर्लभ शुभ संयोग। उमड़ चमोली में आदि बद्री मंदिर के कपाट आज मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आज ठीक 4 बजे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस मौके पर आदि बद्री मंदिर को फूलों से सजाया गया है। वहीं आज से 7 दिन का पर्यटन और सांस्कृतिक विकास मेला भी शुरू हो गया है। सुबह 4 बजे कपाट खुलने पे भगवान जी का अभिषेक पूजा अर्चना हुई और उसके बाद भोग प्रसाद चढ़ाया गया और उसके बाद पूजा अर्चना होने के बाद उसके बाद यात्रियों को धूप पत्ती प्रसाद देने के बाद यात्री अपना दर्शन करके अपने घर को प्रस्थान किया। मकर संक्रांति के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामना और बधाई दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि भगवान सूर्य के इस त्योहार पर सबके जीवन में खुशहाली आए। नमस्कार, आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य के उत्तरायण होने का यह शुभ दिन देवभूमि उत्तराखंड में मकर संक्रांति घुघुतिया त्योहार के रूप में मनाया जाता है और पूरे देश में कहीं पोंगल और कहीं बिहू के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन मां गंगा में भी पवित्र स्नान किया जाता है ताकि हमारे जीवन में सभी कष्टों का निवारण हो सके। मेरी प्रार्थना है कि इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सूर्य भगवान की कृपा से हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता रहे। एक बार पुनः आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार में अर्की पैड़ी पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से अर्की पैड़ी पर स्नान करने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। मकर संक्रांति का शास्त्रों में खास महत्व बताया गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सूर्य को अर्घ देने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए श्रद्धालु दूर दूर से गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र को 8 जोन और 28 सेक्टर में बांटा गया है। ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही अलग अलग जगह से आई देव डोलियों को भी स्नान कराया गया। सुबह से ही त्रिवेणी घाट में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं स्नान को लेकर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं।
समूह के साथ त्रिवेणी घाट पर हम मकर संक्रांति का स्नान कर रहे हैं। पूरे भारत में इस त्यौहार को बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ मनाया जाता है। साथ ही साथ प्रातःकाल आज जूनागढ़, गुजरात से, हल्द्वानी से, मेरठ से, सहारनपुर से मकर संक्रांति पर उत्तरकाशी गंगा घाटों के साथ मणिकर्णिका घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसके साथ ही श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई है। वहीं कई गांवों से ग्रामीण देव डोलियों के साथ मणिकर्णिका घाट पहुंचे हैं और गंगा में डोली के साथ डुबकी लगा रहे हैं। देहरादून में वेटरन्स डे के मौके पर गढ़ी कैंट में बड़ी धूमधाम से समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शौर्य स्थल पर वीर शहीदों को याद किया और वीरांगनाओं को सम्मानित किया। वहीं भारतीय सशस्त्र बलों के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा के योगदान को भी याद किया जाता है, जो 1953 में इसी दिन रिटायर हुए थे। कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कई स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें मेडिकल सहायता के साथ पेंशन संबंधी जानकारी दी गई। सर अच्छा लगता है और ये भी दुख भी होता है कि हमें बार बार मतलब ऐसे करते हैं, बुलाते हैं, तो थोड़ा लगता है, अच्छा लगता है कि मतलब जनरल से लेके और कमांडेंट जो भी है सब ऑफिसर वगैरह सब अच्छी बोल देते हैं। हाँ जी, सब हाँ पूछते रहते हैं। हर महीने में घर भी आते हैं पूछने के लिए। कैंप लगने से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है पूर्व सैनिकों को, और क्योंकि वो यहीं पे एक जगह में सारी चीजें मिल जाती हैं। उसी में आधार कार्ड बन रहा है, उसमें स्पर्श का बन रहा है और बैंक की डिटेल्स है, मेडिकल कैंप लग रहा है, तो बहुत फायदा होता है। इस परिवार के अंदर में सर्विसमैन वेटरन्स की इतनी संख्या हो तो आप सोच सकते हैं कि वहां पे माहौल क्या होगा। सबके दिल में ये है कि हमने देश की सेवा की है, अभी राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण के अंदर में हम सेवा करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है वेटरन्स डे में जो हम वी गॉट टू टेक स्टॉक ऑफ एस्पेक्ट की, क्या हम उनके वेलफेयर की जरूरतों को देख रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।